कुछ वीडियोस ऐसे होते हैं जिसको आप डीपली अगर देखोगे रुक करके, देन यू विल लर्न हाउ टू इन्वेस्ट, हाउ टू फाइंड multi baggers, and the proof of the pudding is in front of you. You can see that in front of you. I have made videos on Titagar, I made videos on Shivalik Bimetal and Texmaco. Those stocks have become 5x, 11x and all. Jupiter also, where I said that this will be a multi-bagger. So how I can say that this will be a multi-bagger and this turn out to be a multi-bagger? It's not by fluke, because I have deeply analyzed all the great investors, and I realized that if you understand the essence, then getting multi-bagger is just easy. It will follow. Results will follow if you have a proper process. So results have mostly followed me. I have been lucky to find companies across all kinds of sectors, from finance industry, Bajaj Finance, from AdTech, Apple, Godavari Power is a steel maker, Ramkrishna Forging is an auto component supplier, Shakti Pump is a solar renewable company. IMFA is a metal company, Hindustan Copper is a metal, BLS International is a services company, Bharat Wire Group is a manufacturer, IRFC is a PSU, Advait Infotech is a EPC, which is specialized into green hydrogen and transmission projects. Cosmic CRF is, on the other hand, is a supplier to railway supplier. So it's a tier 2 to Indian Railway. Zen Technology is an anti-drone specialist. Fine Organic is a chemical play. Jindal Steel and Power, it became 4x for us. It is a conglomerate. It was a conglomerate back then, power plus steel. Jazz Engineering, I already spoke to you about. Borosil Renewable was a transitory multi-bagger 3x for me. I'm not invested into it anymore. Gujarat Gas was also a transitory multi-bagger. It became 2-3x. And sugar stocks, I already given you enough ammunition to invest into sugar stock and create multi-bagger. So actually, if you, I realized that बलरामपुर चीनी और धामपुर शुगर, जब मैंने वीडियो ही बनाया था साधन पे, उस समय मुझे लग गया था कि ये सब 2x 3x होंगे, बट दैट टाइम आई डिडंट से. इट वाज 3 years बैक. दैट टाइम आई डिडंट हैव द कॉन्फिडेंस एंड कन्विक्शन टू से कि ये मल्टीबैगर बनेगा, बट मैंने बोला था कि ये सारे स्टॉक रीरेट होंगे, एंड ऑल ऑफ दीज स्टॉक्स टच्ड ऑल टाइम हाई एंड नोबडी एल्स वाज ट्रैकिंग इट. सो एक जो नेग्लेक्ट को पहचानना बहुत जरूरी होता है. जहां पे भी नेग्लेक्ट है, जैसे जेन टेक्नोलॉजी में नेग्लेक्ट था, कोई एंटी ड्रोन, किसी को कुछ नहीं पता था कि एंटी ड्रोन होता भी क्या है. बोरोसिल रिन्यूएबल 3 साल पहले कोई नाम भी नहीं जानते थे. सो जहां पे भी नेग्लेक्ट है, जैस इंजीनियरिंग 3 years बैक, वाटर ट्रीटमेंट किसी को कोई इंटरेस्टेड नहीं था. तो जहां पे भी मार्केट नेग्लेक्ट है, या जैसे अभी कॉपर की बातें हो रही है, बट कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर जब 100 से कम पे था तो किसी ने बात नहीं की थी. तो अभी कॉपर, हिंदुस्तान कॉपर इज टचिंग 400 नाउ. सो जो नेग्लेक्ट है उस पे आपको फोकस करना है. सो दैट इज द सीक्रेट सॉस. सो नेग्लेक्ट को आप कैसे आइडेंटिफाई कर पाओगे? सो फॉर दैट यू नीड टू डू सम इन्वेस्टमेंट. मतलब आप नेग्लेक्ट को ट्रैक करने के लिए यू नीड टू हैव एन आइज. इट कैन नॉट बी स्पोकन. अगर सब लोग पॉइंट करने लगे कि वारी रिन्यूएबल में आप घुस जाओ, तो वो आपके लिए शॉर्ट मल्टीबैगर नहीं है. उसमें इतने वैल्यूएशन पे आप, मोस्ट ऑफ यू विल नॉट मेक मनी इनटू चेजिंग दोज हॉट स्टॉक्स. वन हैज टू इंट्रोस्पेक्ट कि मुझे क्या आता है. अगर आपको पता है कि मैं वारी रिन्यूएबल को समझ सकता हूँ ऑन व्हेन इट वाज अवेलेबल एट लेट्स से 100 से कम पे, जब कोई ट्विटर पे थ्रेड नहीं थे, तो जब ट्विटर पे थ्रेड बन के फिर यू लूज अ चांस टू क्रिएट मल्टीबैगर. सो ट्विटर पे या यूट्यूब पे वीडियो भी बन जाते हैं, तो भी आपके चांसेस कम हो जाते हैं इफ इट बिकम्स पॉपुलर. सो बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक is in yourself. That's Warren Buffett typical wisdom. He said that you have to acquire new knowledge and skills and experience that will pay dividend for a lifetime. So ये investing जो है, it's a lifetime game. It's not for me also. It's not a one time game that कि मैं invest करके फिर मैं कुछ और करने लगूंगा. I have left my job to do the investing full time. So it's a lifetime game for me, and that's why I invested my 3-4 years to understand this craft. एक बहुत ही popular question है कि investing art है या science है. Kind of, I agree that this is neither art nor science. It's a mixed bag. And being a science student helps me understand that fundamental view कैसे बनाना है किसी कंपनी के बारे में. When I say fundamental, which means financial analysis, macro factors, and sector, थोड़ा बहुत सेक्टर के बारे में, कि मोटा मोटी कि भाई ये टूथपेस्ट बनाती है कि अम्ब्रेला बनाती है, इतना पता होना चाहिए. वो कंपनी डेट बाय इक्विटी कितना है, ये सब चीज़ें, दीज आर द कोर टेनेट्स ऑफ फंडामेंटल इन्वेस्टिंग. सो दैट इज साइंस पार्ट. कि आपको एक मैं मेथड दे दूँ कि भाई ये मेथड है, फंडामेंटल व्यू ऐसे डेवलप की जाती है कि टॉप डाउन अप्रोच है, बॉटम अप अप्रोच है. विल टॉक अबाउट दोज अप्रोचेस. सो वो डेवलप करना इज साइंटिफिक. Then ultimately that part of it is finding financially sound companies. These are all our science, and kind of have a
एक अंडरस्टैंडिंग ऑफ वैल्यू, क्लियर अंडरस्टैंडिंग आपको नहीं मिलेगी यूजिंग साइंटिफिक अप्रोच की वैल्यू क्या है कंपनी में, बट यू काइंड ऑफ कैन पुट अ नंबर विच मे बी रॉन्ग मोस्ट ऑफ द टाइम, बट यू कैन पुट अ नंबर कि हाँ ये वैल्यूएशन ये है यूजिंग सम XYZ metrics and all, maybe PE or anything. So that is the scientific part. One thing which is also scientific is the quality of earning. So earning तो सब लोग दिखा देते हैं, बट उसकी कितना सस्टेनेबल है और उसमें कितना फ्री कैश फ्लो जनरेट हो रहा है, कैश फ्लो कितना है, एक्चुअल कैश कितना है. सो कैश बेसिस से बिजनेसेस को जज करना इज ऑल्सो वन पार्ट ऑफ क्वालिटी ऑफ अर्निंग. सो नॉट जस्ट अर्निंग और अर्निंग ग्रोथ, EPS ग्रोथ एंड ऑल दोस थिंग, बट द क्वालिटेटिव पार्ट ऑफ अर्निंग इज साइंटिफिक. उसके लिए भी आई विल शेयर द फॉर्मूलाज कि हाँ ऐसे ऐसे आप देख सकते हो. तो आप टू एसेस की फॉर एग्जांपल CFO by EBITDA and all those things, there are multiple tools which will share in financial analysis. That is science part. And how to avoid type 1 error, मतलब कि कहाँ नहीं जाना है, मतलब दैट इज ऑल्सो साइंस. कन्विक्शन पार्ट है, दैट इज एन आर्ट. तो आप प्योर प्ले फंडामेंटल एनालिसिस से यू विल नॉट बी एबल टू पिक अप कंपनी लाइक तेजस और भारत वायर और जुपिटर वैगन जो मैंने आइडेंटिफाई किया था, वो नहीं कर सकते. सो साइंस हैज अ लिमिटेशन. सो बट यू बिकॉज यू हैव टू गो इनटू द आर्ट साइड ऑफ इन्वेस्टिंग. So art side of investing is developing convictions. For example, Jupiter में when I made video, then I said कि this will be a multi-bagger, and I'm quite bullish on these stocks. And I think this railway stock can be a multi-bagger in next 2-3 years. तो वो कन्विक्शन क्यों आया? बिकॉज आई सॉ कि उसके पास जो एसेट है और वो किस स्ट्रैटेजी से चल रहा है, उसका गेम प्लान क्या है. उसने कहीं स्पेल आउट नहीं किया था, कहीं पे उसने मैनेजमेंट ने इंटरव्यू भी नहीं दिया था, लेकिन मुझे वो समझ में आ गया कि वो करना क्या चाह रहा है. सो मुझे पता चल गया कि वो उसका गेम प्लान क्या है. देन आई सेड कि ये मल्टीबैगर बनेगा, और उसमें कोई IRFC वगैरह मैं ट्रैक करता था और जुपिटर सेकंड स्टॉक था रेलवे का. तो IRFC तो चलो ठीक है, सेफ स्टॉक था, PSU था तो सेफ था, उसमें मैंने पोजीशन ले लिया. बट व्हेन आई अंडरस्टूड IRFC और रेलवे के प्लान, देन आई थॉट कि अगर कोई ढंग का मैनेजमेंट है तो अब वो यहाँ पे खुल के खेल सकता है. मतलब कि पता चल जाता है ना कि सामने एक वीक बॉलिंग लाइनअप अगर ख़राब है तो आपको पता है कि हर विराट कोहली है तो बहुत अच्छी बात है, कोई ऋषभ पंत भी छक्के मार सकता है, मतलब ऐसा सेटअप है. तो इट्स लाइक दैट कि आई एम नॉट सेइंग दिस इज़ द बेस्ट मैनेजमेंट आई हैव, बट दिस इज़ अ गुड इनफ मैनेजमेंट टू मेक अ मल्टीबैगर रिटर्न, क्योंकि उसकी स्ट्रैटेजी सही थी. सो वो कन्विक्शन पार्ट है, दैट इज़ एन आर्ट. सो इसमें मैंने कोई हार्ड फैक्ट नहीं बताया कि उसका ट्रैक रिकॉर्ड था और ऐसा कुछ भी नहीं था. वेरी सटल फैक्टर्स विच आई रेड अबाउट in their balance sheet, not in balance sheet literally, but in their website. तो वेबसाइट को पूरा खंगाल लोगे, देन यू विल नो कि हाँ वो क्या कहना चाह रहा है, कोई कंपनी क्या कहना चाह रही है. फॉर एग्जांपल अभी ग्रुप पे किसी ने अपार इंडस्ट्री का लिंक भेजा था कि कंपनी अपार क्या क्या नया कर रही है. सो कंपनी इज वांटिंग यू टू नो कि वो अच्छा क्या कर रही है, बट इट इज अस दैट वी आर नॉट सेइंग कि अरे अपार तो बढ़ गया आपने. वी आर प्लेइंग फुल आरडी विद अगेंस्ट अस. सो इफ़ यू गो एंड रीड द पार का वो पूरा ब्रोशर कि उसने वो रेलवे के लिए कैसा निकाला है उसे, क्योंकि अभी मैं पढ़ रहा था अभी इस क्लास के जस्ट पहले उस लिंक पे, तो मैंने वो सब पढ़ा हुआ था पहले भी, बट उसने एक प्रेजेंटेबल तरीके से अभी वो लिंक में डाला हुआ है. तो अभी एक लाइन बाय लाइन अपार ने बताया हुआ कि ये वो नया कर रहे हैं. दैट्स अ प्रेजेंटेशन एंड दैट्स व्हाई आई थिंक रीथिंक कि हाँ अपार अपने काम को अच्छे ढंग से प्रेजेंट करने पे आया है. मतलब अभी तक तो वो सर झुकाकर काम कर रहा था, मतलब कि, और अब वो बोलने वाले स्टेज में आया है. अब उसके पास माइक है, अब वो बिकॉज नाउ इट्स अ बिग कंपनी, थोड़ी सी बड़ी कंपनी है, तो उसके बाद फिर इट विल हैव अ डिफरेंट ट्रेजेक्टरी नाउ. सो वो कितनी होगी आई एम नॉट श्योर, क्योंकि अभी मैंने पूरा डॉक्यूमेंट वो सब देखा नहीं है, बट उसको कन्विक्शन बिल्ड करने में यूज करोगे कि अपार के मैनेजमेंट में कन्विक्शन डेवलप करते हैं, देन दैट इज एन आर्ट पार्ट. क्योंकि वो बोला है कि मैंने एक इनोवेटिव प्रोडक्ट कॉपर मैग्नीशियम का वायर बना दिया केबल, जो कि बहुत ही नया है और RDSO अप्रूव्ड है. दिस इज अ फैक्ट which is you will see there. अब there are two terms, RDSO है, copper magnesium है and cable है. तो RDSO is since I have tracked railway, I know कि RDSO से अप्रूवल कितनी मुश्किल से आता है. So you have to mix those facts with your wisdom कि RDSO अप्रूवल हर कोई नहीं ला सकता और इसने ले आया है, और जस्ट इट्स अ मैटर ऑफ कि इंडियन गवर्नमेंट रेलवे से कि नहीं अब हमारे वायर जो है कॉपर मैग्नीशियम के आएंगे, फिर ये बिजनेस लाइन विल स्काई रॉकेट लाइक एनीथिंग. सो that is like understanding different actors, which is Indian Railway, RDSO and APAR and the product. So this is an art and this is not science. मतलब कि although it looks like scientific, या हम बहुत scientific copper और magnesium की बात कर रहे हैं, but it's an art product. बोलते हैं कि essence जो आती है खाने में वो रेसिपी से नहीं आती है, it is the maker who brings that essence कि उसमें क्या ज़्यादा डालना है,
इलायची ज़्यादा डालनी है चाय में या अदरक ज़्यादा डालनी है. सो दैट एसेंस इज दैट मैनेजमेंट. तो मैनेजमेंट क्या कहना चाह रहा है, इफ़ यू ट्राई टू गेज दैट, क्योंकि अल्टीमेटली वी ऑल आर पैसिव इन्वेस्टर, सो वो पूरा का पूरा आर्ट ही हो जाता है मेरे लिए तो इन्वेस्ट करना. बेसिकली मैं तो थोड़ी जाके जुपिटर का, मैं वहाँ पे उनको उनके प्लांट मैंने देखे हैं जो मैं इतना कॉन्फिडेंटली बोल रहा हूँ. मेरे लिए तो वो जो है वो प्रोमोटर है, वो कितना कॉन्फिडेंट है अबाउट हिज प्लान, दैट मैटर्स. सो वी आर विटनेसिंग, वी आर ईटिंग अप द फ्रूट्स विच इज मेड अप एंड प्रेजेंटेड बाय अदर्स. सो वी हैव टू फाइंड दोज स्पॉट्स की कौन सा घोड़ा तेज भागेगा, किसके लिए आगे रोड ब्लॉक्स नहीं है, सो हर्डल्स नहीं है. इससे आगे ना हर्डल इज, वी हैव टू काउंट कि हाँ ट्रैक पे कहाँ हर्डल्स कम है. सो टेक्निकल एनालिसिस में एक हर्डल्स होता है प्राइस का कि हाँ ये जुपिटर 70 पिछला हाई इसका जो है 120 था, तो ये 70 पे है, तो ये 120 पे जाके थोड़ा देर वेट करेगा. वैसा ही हुआ, 70 से 125 पे जाके वो रुका थोड़े दिन, फिर मैंने पूरा उसमें लोड किया उस समय और ज़्यादा खरीदा, क्योंकि मुझे टेक्निकली इतना समझ में तब आ रहा था कि हाँ टेक्निकल हर्डल है वहाँ, मतलब टेक्निकल चार्ट वाइज. फिर उसके 125 के बाद मुझे पता था कि ये 250 के पहले रुकेगा ही नहीं, फिर वो 250 गया, फिर 300 गया, 400 गया, तो अब नई टेरिटरी में चला गया. तो वो बिजनेस फंडामेंटल से ड्रिवन हो रहा है. तो वहाँ टेक्निकल एनालिसिस विल फाइंड, एनालिस्ट वुड बी क्लूलेस कि ये क्या हो रहा है, मुझे समझ में क्यों नहीं आ रहा टाइप्स. दैट मोमेंट विल अराइव फॉर अ टेक्निकल एनालिस्ट. बट फॉर अ फंडामेंटल एनालिस्ट, बिकॉज समबडी हु अंडरस्टैंड द आर्ट ऑफ इट, ही विल से हाँ ये ऐसा तो होना ही था. फॉर मी इट इज़ लाइक अद्वैत अगर 4x बन गया 10 महीने में, 6-9 महीने में, तो मुझे लगता है, मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसा कैसे हो गया. सो आई विल नॉट ट्रिम माई अद्वैत पोजिशन जस्ट कि ये 4x हो गया और जो भी. दैट इज कमिंग बिकॉज आई सी इट इज एन आर्ट, और आर्ट इज वेरी डिफिकल्ट टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ, डिफिकल्ट टू पैरामीटराइज. सो अल्टीमेटली कन्विक्शन मैटर्स, कि कन्विक्शन, मेरा कन्विक्शन मैनेजमेंट में कितना है. वैल्यूएशन इज स्टिल एन आर्ट, बहुत ज़्यादा आर्ट ही है. बट as long as I see the tailwinds around and I see people crave for those stocks, तब तक वो बढ़ेगा. मतलब अल्टीमेटली एक बहुत ही अच्छा पैराडाइम है. जैसे कि आपको कोई सुंदर लगती है, कोई एक्ट्रेस, किसी को दिया मिर्जा सुंदर लगती है फॉर एग्जांपल, और ऐश्वर्या राय सुंदर लगती है, तो इट डजेंट मैटर कि आपको दिया मिर्जा अच्छी लगती है, ऐश्वर्या राय अच्छी लगती है, सबसे वर्ल्ड की खूबसूरत लगती है. मैटर ये करता है कि दुनिया को ऐश्वर्या राय सबसे सुंदर लगती है या नहीं. सो इट इज़ नॉट योर चॉइस, यू हैव टू फिगर आउट कि पब्लिक को अभी कौन सी जो भी एक्ट्रेसेस हैं वो क्यारा अच्छी लग रही है या फिर जो भी है, वो लोग आपको वो ट्रैक करना है. नेक्स्ट करीना कपूर कौन होने वाली है. सो इट इज़ नॉट दैट यू लाइक करीना कपूर तो आप वहीं पे टंग गए. आपको यू हैव टू फोकस ऑन कि अब इसके जैसी कौन दिखती है जो उस पैटर्न को कहीं और फॉलो कर रहा है, जो लोगों को अच्छी लगेगी. सो इट्स नॉट योर पर्सनल चॉइस. इन्वेस्टिंग इज ऑल अबाउट सीइंग ब्यूटी इन अदर्स पीपल आई, कि वो दूसरा बंदे को. तो अद्वैत, मुझे पता था कि अद्वैत मुझे अच्छा लग रहा है, तो मैंने लोड कर लिया. मुझे पता था कि अभी ये ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में बात कर रहा है, ग्रीन हाइड्रोजन एक भी इसको मिल गया तो फिर यहाँ से ये रुकेगा नहीं. फिर तो मैंने ग्रीन हाइड्रोजन के पहले अद्वैत में लिया, ग्रीन हाइड्रोजन के बाद भी इसलिए लिया क्योंकि मुझे मैनेजमेंट पे और कॉन्फिडेंस आ गया कि ये भाई इसने तो बोला था और कि ग्रीन हाइड्रोजन में, और उसने फिर डिलीवर किया. मेरा कॉल इस पे था कि वो अच्छा मैनेजमेंट है. मुझे नहीं पता था कि वो ग्रीन हाइड्रोजन जीतेगा या नहीं जीतेगा, बट ही वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड, इतना मुझे पता था. और ही वॉन, तो मैंने फिर उसको एज अ, यू कैन से एज अ टोकन ऑफ appreciation I invested more into it. So that's how journey is, that is more of an art, is more of a relationship with the stock, but not a emotional relationship कि हाँ stock price ऊपर जा रहा है तो अच्छा लग रहा है, गिर रहा है तो फिर उसको आप बेचने के लिए आ गए हो. So that is more of a art. You are developing a thesis is, developing a view is a fundamental view is a science, but developing your allocation and your staying power and your journey is an art, because that's a product of conviction. And उसी का एक पार्ट हो जाता है when to sell a stock, स्टोरी कहाँ जाकर खत्म हो रही है. that I'll teach, that is an art part. तो उस पर we'll have 3 sessions. That's ultimately is help us ride a winner. Finding a winner ही चलो stock picker job, but riding a winner is the investor's job. How to assess the quality of management. So everything is boils down to the art part, boiled down to the management and to certain extent sector, कि sector जो है cycle कहाँ पे है. So both things are art part. हालांकि सेक्टर वाला पार्ट स्टिल थोड़ा सा साइंटिफिक है. यू कैन फिगर इट आउट कि अपॉर्चुनिटी साइज कितनी है, मतलब, बट उसमें भी बहुत आर्ट वाले पार्ट हैं. मैनेजमेंट तो प्योर प्ले आर्ट वाला पार्ट. एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्राफ्ट लेट मी अलाउ टू नॉट कमिट टिपिकल एरर्स विच अकर्स इन मार्केट. आप मार्केट में हैं तो आप 2 तरीके की गलतियां कर सकते हैं. पहला है टाइप 1 एरर और दूसरा है टाइप 2 एरर.
तो बहुत ही सिंपल है। टाइप 1 एरर जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि अगर आप डॉक्टर है और इफ यू आर सेइंग 70-year-old मेल पर्सन की यू आर प्रेग्नेंट, मतलब कि आप उसको गलत बता रहे हो, मतलब इन टू बाइंग अ बैड स्टॉक, मतलब कि आप जो हो ही नहीं सकता, जो क्वालिटी है ही नहीं, आप उसको स्टॉक लेकर के आप बैठ गए, तो दैट इज टाइप 1 एरर। दिस इज कॉल्ड एरर ऑफ कमीशन, मतलब यू कमीशन योरसेल्फ इनटू अ बैड स्टॉक। सो दिस इज टाइप 1 एरर। एंड टाइप 2 एरर इज दैट आपके सामने स्टॉक पड़ा हुआ है, अच्छा स्टॉक है, बट यू आर सेइंग नो दिस कैन नॉट बी मल्टीबैगर, नो नो, ये तो हो ही नहीं सकता, इसको कोई ट्रैक नहीं करता, ये कैसे मल्टीबैगर बनेगा। सो दैट इज type 2 error. It's an error of omission, that it was there in front of you, but you could not buy it, could not buy the good stock. Third error, which I had kind of defined, is selling your winners early. अगर आपने टाइप 1 टाइप 2 टाइप 1 एरर कम किए और आप एक विनर पे आ भी गए, बट उसको बेच देना। जब मैंने टीटागर वैगन पे जब 325 पे वीडियो बनाया था, दैट टाइम ऑल्सो इट वॉज 3.5x, क्योंकि मैंने 100 से कम पे एंट्री ली थी, और वो 3-4 महीने 6 मंथ्स में 300% अप था, 400% था, बट उसको मैंने बेचा नहीं, वो वहां से फिर 1100 तक गया, अभी भी 1100 के प्राइस पे है। दिस कम्स विद एन एक्सपीरियंस एंड दिस इज एन आर्ट। दिस इज द टाइप 3 एरर कि आपके पास एक स्टॉक तो आया बट आपने उसको 3x पे बेच दिया, वो 10x जा सकता था। तो वो सेलिंग योर विनर्स अर्ली इज बेसिकली द गुनाह अजीम, जिसे सरफरोश मूवी में कहा था कि ये काइंड ऑफ अ सिन है, ये मतलब गुनाह है ये, बिकॉज अल्टीमेटली यू हैव टू होल्ड ऑन टू योर विनर्स, देन ओनली यू कैन फाइंड मल्टीबैगर्स। सो दिस इज टाइप 3 एरर। एंड साधन की फिलॉसफी ये है दैट वी फोकस ऑन रिड्यूसिंग टाइप 1 एंड टाइप 3 एरर्स। मतलब हमें क्या गलती नहीं करनी है कि कुछ अच्छे स्टॉक छूट जाए, वो प्रॉब्लम नहीं है। हमें क्या अवॉइड करना है कि अच्छे स्टॉक पकड़ लिए तो उसको नहीं छोड़ना है, दैट इज टाइप 3 एरर अवॉइड करना है। एंड टाइप 1 एरर की हमें खराब स्टॉक अवॉइड करना है। सो फिलॉसफी सिंपल है कि हमें खराब स्टॉक में जाना ही नहीं है, कुछ अच्छे स्टॉक छूट भी जाए लेकिन अच्छे स्टॉक में अगर हम एंट्री कर ली तो उसको होल्ड करना है टिल द क्लाइमैक्स। तो दिस इज ओवरऑल द ब्रॉडर फिलॉसफी विच वी कैरी, एंड उसी को मैंने साधन मेंटरशिप प्रोग्राम में डालने की कोशिश की। अल्टीमेटली द एंड गेम अंडर दिस मेंटरशिप प्रोग्राम इज टू फाइंड अ सस्टेनेबल इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क। तो देयर हैज टू बी सस्टेनेबिलिटी एंगल अटैच्ड टू इट, क्योंकि मेकिंग क्विक बक्स इज नॉट समथिंग विच इज सस्टेनेबल जनरली, सो यू हैव टू मेक इट इन अ सस्टेनेबल वे। इसके लिए दो चीज़ें हैं, वन इज दैट we don't have to lose money, and second, if you can avoid the stocks which are not good, type 1 error आप avoid कर ले रहे हो, तो टाइप 3 एरर को अवॉइड करने के लिए, यानी कि सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस विल हेल्प यू, कि अगर आपको आपके सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस में है, सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस इज बेसिकली अ कंस्ट्रक्ट विच सेज कि जैसे राहुल द्रविड़, अगर किसी को क्रिकेट पता है तो वो ऑफ साइड के ऊपर बाउंसर्स को या ऑफ साइड के बाहर की बॉल को टच ही नहीं करते थे टेस्ट मैचेस में, तो दैट वाज रूल नंबर 1, नेवर लूज मनी। बट ऐसा नहीं था कि ही नेवर स्कोर्ड, ही स्कोर्ड हंड्रेड्स इन लॉट्स एंड मेनी प्लेसेस वेयर नन ऑफ इंडियन बैट्समैन कुड डू। सो ही प्लेड इन हिज सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस, कि कोई लूज बॉल आई तो उसको वो फ्लिक करके चौके मार दिया या स्क्वायर कट कर दिया, या उसके पास सारे टेक्स्ट बुक शॉट्स उनके पास थे। So he was just waiting for a loose ball and he played those shots. वो 2 ओवर के बाद आए या 4 ओवर में एक बॉल आए, he is going to square it to 4. So that is playing by your circle of competence, and that is very important. That's where multi-bagger gets created, when because if you are playing in your circle of strength, then you can develop deeper conviction, and then you can hold for a longer term, and then you can reduce type 3 errors, that's selling your stock early. So this is where a power of compounding also helps, क्योंकि वो इसीलिए 3 साल 4 साल की बात हम इसलिए करते हैं क्योंकि 3-4 सालों में कंपाउंडिंग ऑल्सो वर्क्स। मार्केट धीरे धीरे स्लो पिक करता है अच्छे मैनेजमेंट को,